ناظرین آداب، منصف ٹی وی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ JKL ڈائری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمران علی بیگ۔ شروعات کرتے ہیں سرخیوں کے ساتھ۔ جموں کشمیر کے اننت ناگ میں دھماکہ، 8 مزدور زخمی، دہشت گردی کے زاویے کی تصدیق نہیں۔ SDRF نے دیا مستعدی اور بہادری کا ثبوت، تیز ہواؤں کے درمیان مانسبل جھیل میں پھنسے 6 افراد کو بچایا۔ اور PDP صدر محبوبہ مفتی کی وزیر خارجہ S جے شنکر سے درخواست، سعودی عرب میں سڑک حادثے میں جاں بحق ہوئے سری نگر کے نوجوان کی میت واپس لانے کی گزارش۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ جموں کشمیر کے اننت ناگ ضلع میں بدھ کو ایک دھماکے میں 8 افراد زخمی ہو گئے، پولیس نے بتایا۔ تاہم پولیس نے دہشت گردی کے کسی بھی زاویے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ دھماکہ ایک لوڈ کیریئر گاڑی میں ہوا، جس میں کنکریٹ، وائبریشن مشین، پورٹیبل جنریٹر اور تیل کا ایک ڈبہ تھا۔ کشمیر زون پولیس نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ لارکی پورہ اننت ناگ میں ایک لوڈ کیریئر میں مزدوروں کے ساتھ لے جانے والے سیمنٹ مکس سیٹلنگ وائبریشن مشین، ملحقہ پورٹیبل جنریٹر اور تیل کے ٹین کین میں دھماکہ ہوا۔ پولیس نے بتایا کہ 8 مزدور جھلس کر زخمی ہوئے اور ان کا ایک اسپتال میں علاج کیا جا رہا ہے۔ سب مستحکم ہیں، دہشت گردی کا کوئی زاویہ نہیں دیکھا گیا اور اس معاملے کی تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ کی ابھی تک تصدیق نہیں کی گئی ہے۔ بڑھتے ہیں آگے۔ SDRF نے تیز ہواؤں کے درمیان مانسبل جھیل میں 6 افراد کو بچایا ہے۔ اسٹیٹ ڈیزاسٹر ریسپانس فنڈ SDRF نے جمعرات کو 6 افراد کی جان بچائی، جو وسطی کشمیر کے گاندربل ضلع میں مانسبل جھیل میں تیز ہواؤں کے درمیان پھنس گئے تھے۔ عہدیداروں نے اس بات کی تصدیق کی ہے۔ کشمیر نیوز آبزرور کے ANO کو بتایا کہ مانسبل جھیل میں 6 افراد کشتی کی سواری سے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ اچانک تیز ہوائیں چلنے لگی۔ تاہم SDRF کی مستعد ٹیم نے فوری رد عمل دیا اور اپنی ٹیموں کو لے کر فوری ریسکیو آپریشن شروع کیا اور ان لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ بہترین مستعدی اور بہادری کا ثبوت۔ مانسبل جھیل میں کشتی روانی سے طوفان تصویریں ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح طوفان کا زور تھا اور SDRF کی ٹیم وہاں پہنچی اور سیاحوں کو انہوں نے بآسانی باہر نکال لیا اور اپنی کشتی میں سوار کر کے ساحل پر لے آئے۔ بڑھتے ہیں آگے۔ PDP صدر اور سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے وزیر خارجہ ڈاکٹر S جے شنکر سے سعودی عرب میں ایک سڑک حادثے میں جاں بحق ہونے والے سری نگر کے نوجوان کی میت واپس لانے میں مدد کی درخواست کی ہے۔ اطلاعات کے مطابق سری نگر کے رانا واری علاقے سے تعلق رکھنے والے عادل شعبان نامی نوجوان حال ہی میں معاش کے لیے سعودی عرب گئے ہوئے تھے، جہاں ان کی ایک سڑک حادثے میں موت واقع ہو گئی۔ محبوبہ مفتی نے اس ضمن میں جمعرات کو ایکس پر اپنے ایک پوسٹ میں کہا کہ رانا واری سے تعلق رکھنے والے عادل شعبان کی سعودی عرب میں ایک بھیانک سڑک حادثے میں موت واقع ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ غمزدہ خاندان
اس کی میت کو تدفین کے لیے واپس لانے میں شدت سے کوشاں ہیں۔ انہوں نے اپنے پوسٹ میں کہا کہ میں وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر اور وزارت امور خارجہ سے میت واپس لانے میں مدد کرنے کی درخواست کرتی ہوں۔ اور آئیے اس پورے معاملے پر بات کرتے ہیں اپنے نمائندے دین عمران سے، جو اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑ گئے ہیں۔ جی عمران، عادل شعبان کی میت وطن لانے کی محبوبہ مفتی نے وزیر خارجہ ایس جے شنکر سے درخواست کی ہے۔ تفصیلات کے مطابق سڑک حادثے میں ہوا تھا عادل شعبان کا انتقال۔ دین عمران، کب اور کیسے ہوا تھا یہ حادثہ؟ دیکھیے، یہ 26 ستمبر کو تقریباً شام کے اوقات میں جو ہے اس نوجوان کو جو ہے عادل شعبان کو یہ رستے میں چل رہا تھا تو ایک گاڑی نے اس کو ٹکر مار دی، جہاں پہ یہ شدید زخمی ہوا۔ حالانکہ اس کو علاج معالجہ کی غرض سے نزدیکی اسپتال منتقل کیا گیا تھا، لیکن جہاں پہ انہوں نے دم توڑ دیا، زندگی کی جنگ جو ہے ہار گئے تھے وہاں پہ۔ آپ کو بتا دیں کہ یہ نوجوان جو ہے عادل شعبان، یہ تقریباً 12 دن پہلے سعودی عربیہ گیا تھا نوکری کے سلسلے میں، جی جہاں پہ اس کی موت جو ہے واقع ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ یہ علاقہ جو ہے جیزان نامی علاقہ جو سعودی عربیہ کا ہے، وہیں پہ اس کی موت واقع ہوئی ہے۔ جی عمران۔ ہاں، تو دین عمران، یہ 12 دن پہلے جازان گئے تھے؟ جی کیا میت کو واپس لانے میں کوئی رکاوٹ ہے یا کسی قسم کی لاپرواہی سامنے آ رہی ہے؟ کیونکہ خود محبوبہ مفتی نے معاملے کا نوٹ لیتے ہوئے وزیر خارجہ سے گزارش کی ہے اس معاملے میں۔ دیکھیے، جس طرح سے محبوبہ مفتی نے آج یہ ٹویٹ کیا ہے 2-2.5 گھنٹے قبل، حالانکہ انہوں نے جو MEA ہے، جو منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس ہے، انہوں نے ان کو اس حوالے سے گزارش کی ہے کہ جو میت ہے اس نوجوان کی، جو عادل شعبان نامی نوجوان ہے، انہوں نے درخواست کی ہے منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس سے کہ جو نوجوان ہے اس کی میت کو واپس لایا جائے، لیکن ابھی تک اس سلسلے میں شاید کوئی خاطر خواہ نتائج جو ہے سامنے نہیں آئے۔ حالانکہ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اہل خانہ کی بھی بات کریں گے، انہوں نے بھی LG انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے، مؤدبانہ گزارش کی ہے کہ جو ان کا جو لڑکا فوت ہو چکا ہے وہاں سعودیہ میں، اس کی میت کو جلد سے جلد واپس لایا جائے تاکہ ہم آخری رسومات اس کی جو ہے گھر میں یہاں اپنے علاقے میں پوری کر سکیں۔ جی دین عمران، ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر ایسے واقعات میں میت کو وطن لانے میں کافی وقت لگتا ہے۔ محبوب مفتی نے چونکہ وزارت خارجہ سے گزارش کی ہے تو یہ معاملہ سامنے آیا۔ عادل شعبان رانا واری کے رہنے والے تھے، کیسا ماحول ہے علاقے میں؟ خاص کر گھر والوں پر تو بجلی ٹوٹ پڑی ہوگی۔ بالکل، جس طرح سے آپ خود ہی کہہ رہے ہیں یہ کہ رہنا واری کا ہے، نئی دیار رہنا واری کا نوجوان ہے یہ، جس کی موت وہاں پہ ہوئی ہے سعودی عربیہ میں۔ جیسے انہوں نے 2 دن پہلے، حالانکہ آج بھی وہاں پہ جو ان کے رشتہ دار آس پڑوس کے جو لوگ ہیں وہ بھی سینہ کوبی کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے وہاں پہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم پہلے دن کی بات کریں گے 26 تاریخ کو، جب انہوں نے سنا کہ اس طرح سے ان کے ساتھ، ان کے نوجوان ان کے لڑکی کے ساتھ ایسا ہوا، ایسا واقعہ پیش آیا، تو اسی وقت وہاں پہ پورے علاقے میں صف ماتم بچ گئی۔ اور جو خواتین ہیں، خاص کر کے ان کے رشتہ دار جو ہے، جو لواحقین ہیں، وہ سینہ کوبی جو ہے نظر آ رہے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم آج کی بات کریں گے، آج عصر نماز کے بعد جو ہے، جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں، جو اس کے رشتہ دار ہیں وہاں پہ، انہوں نے بھی وہاں پہ جو ہے غائبانہ جنازہ اس کا ادا کیا۔ جی عمران۔ جی دین عمران، بہت بہت شکریہ اس پوری جانکاری کے لیے۔ تو یہ تھے ہمارے نمائندے دین عمران سری نگر سے، جو ہمیں تفصیل بتا رہے تھے عادل شعبان کی سعودی عرب میں ایک سڑک حادثے میں موت ہو گئی ہے۔ میت کو وطن لانے کی کوشش جاری ہے۔ اس درمیان گھر والوں نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ رائنا واری میں ادا کر دی ہے۔ گورنمنٹ میڈیکل کالج اننت ناگ کے شعبہ زچگی اور دیگر امراض کے متعلق دیالگام کے مرکزی کیمپس میں ایک جانکاری کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ کیمپ کا مقصد خواتین کی صحت سے متعلق امور پر بات کرنا اور ان کے مسائل پر روشنی ڈالنا تھا۔ اس موقع پر مقررین نے خواتین کی صحت اور امراض نسواں کی اہمیت پر زور دیا۔
आइडियली जो पेशेंट आना चाहिए हमारे पास प्रेगनेंसी से पहले ही आना चाहिए, ताकि हम उसको चेक करें, उसके पूरा हेल्थ स्टेटस देखें, उसमें देखें उसका खून कितना है, उसको थायराइड की बीमारी तो नहीं है, उसको कोई और इन्फेक्शन तो नहीं है, उसको शुगर तो नहीं है। ये सारी बीमारियों का इलाज करके ही उसको प्रेगनेंसी में जाना चाहिए। प्रेगनेंसी के अलावा भी हमारे यहाँ एनीमिया बहुत पाया जाता है। उसका हमारा जो मेन रीजंस है, एक तो सप्लीमेंटेशन नहीं लेते लोग, डाइट अच्छा नहीं है, और साउथ कश्मीर क्योंकि इसका जो मेजॉरिटी इलाका है, मेजॉरिटी भी नहीं कहूँगा बट काफ़ी सारा इलाका है जो पहाड़ियों और इस एरिया में रहता है, तो उसकी वजह से मसला हमें ये हो जाता है कि वो हॉस्टल आ नहीं पाते। उनको हेल्थ प्रोग्राम्स या एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम्स जो चल रहे होते हैं सोसाइटी में पता नहीं चलता कुछ लोगों को, हालांकि सरकार या हमारे इंस्टीट्यूशन कॉन्टीन्यूसली अवेयरनेस कैंप्स करते हैं, बट इट इज़ जस्ट लैक ऑफ अवेयरनेस कि आप खाना ढंग से नहीं खा रहे हैं या आप बर्थ स्पेसिंग नहीं कर रहे हैं। दो प्रेगनेंसी के बीच में जैसे तीन प्रेगनेंसीज का जैसे तीन एटलीस्ट 2 या 3 साल का इंटरवल होना चाहिए जिसमें बिल्ड अप हो जाती है वापस औरत, तो वो हम नहीं फॉलो करते, जिसकी वजह से एनीमिया बड़ा प्रेवलेंट है हमारे यहाँ। आइडियली जो पेशेंट आना चाहिए हमारे पास वस्ती कश्मीर के गांदरबल ज़िले के कंगन सब डिवीज़न में प्राइमरी हेल्थ सेंटर PHC कल्लन गुज़िश्ता 11 सालों से अपनी इमारत की तकमील का इंतज़ार कर रहा है। इलाके में सेहत की मुनासिब सहूलत न होने की वजह से मकामी लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। PHC कल्लन की नई इमारत पर काम सन 2011 में शुरू किया गया था। अस्पताल की इमारत को मुताल्लिका इदारे ने अधूरा छोड़ दिया है और ताहाल ये नामुकम्मल है। इस वक्त अस्पताल एक पुरानी इमारत में चल रहा है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर नाकाफ़ी है। हेल्थ सेंटर के अमले का कहना है कि मौजूदा पुरानी इमारत खस्ता हाली का शिकार है, जिसकी वजह से अमला और मरीज़ों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तफसीलात के मुताबिक ये हेल्थ सेंटर श्रीनगर लेह हाईवे पर वाक़ है, जिसमें हादसात और दीगर हंगामी सूरतों के अलावा लोगों का काफ़ी रश देखा जाता है। मकामी लोगों ने बताया कि अस्पताल की नई इमारत गुज़िश्ता 1 दहाई से ज़ेर तामीर थी और अब मुताल्लिका एजेंसी ने इसे तकरीबन अधूरा ही छोड़ दिया है। उनका कहना था कि बार बार की दरख्वास्तों के बावजूद हुक्काम PHC कल्लन की नई इमारत के तामीराती काम को दोबारा शुरू करने और मुकम्मल करने में नाकाम रहे हैं, जो दही इलाकों में सेहत की देखभाल को बेहतर बनाने के हवाले से हुकूमत के दावों का गैर जिम्मेदारी का सबूत है। मकामी लोगों ने यह भी कहा कि ये इमारत अब जराइम की आमाजगाह बन चुकी है, क्योंकि नौजवान अक्सर यहाँ आकर नशा करते हैं। अगर आप अस्पताल के अंदर देखें तो आपको शराब की खाली बोतलें नज़र आएंगी। बशीर अहमद हूँ, इसी कुलन एरिया से। इसका काम जो स्टार्ट हुआ 2010 में हुआ था। 2010 में हमारे मियां अल्ताफ साहब तब MLA थे, उस वक्त उन्होंने इसकी इनाग्रेशन की। तो उसके 2 साल बाद इसका काम चला, 1 साल बाद तो काम चला ठीक ठाक। हमने भी सोचा ये शायद 2012 में तैयार होगी, लेकिन तब से लेकर इसकी बिल्डिंग जो बनी, एक स्टेयर तो बनी, एक फर्स्ट फ्लोर बना, बस फिर लोहा वोहा यहाँ रखा था वो भी वापस किया। एक्चुअली इसका काम था हाउसिंग बोर्ड को सौंप दिया गया था, फंड अलॉट हो गए थे हाउसिंग बोर्ड को, लेकिन थ्रू R&B थी ये बिल्डिंग, R&B के थ्रू बन रहे थे, लेकिन हाउसिंग बोर्ड को ठेका मिला था बनाने का था। उन्होंने अपनी तरफ से कुछ नामजद किए हाउसिंग बोर्ड वालों ने। अब तो 12 साल हो गए इसको बना के बनते हुए, 12 साल से बन नहीं रहा है। मकामी लोगों ने बताया कि मुल्हिका देहात के 30,000 से ज़्यादा लोग इस सहूलत पर मुनहसिर हैं, लेकिन उन्हें सेहत की सहूलत की अदम दस्तियाबी की वजह से अपने मरीज़ों को या तो SDH कंगन या श्रीनगर के किसी अस्पताल ले जाना पड़ता है। मकामी लोगों के मुताबिक इस हेल्थ सेंटर की तामीर का काम सन 2011 में शुरू किया गया था। ये मरकज़ कल्लन, रील, रेजान और गगनगीर के दूर दराज इलाकों के मकामी लोगों की सेहत की ज़रूरियात को पूरा करता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस मंसूबे की तकमील न होने की वजह से हमें शदीद परेशानी का सामना है। सर्दियों में मरीज़ों को दूसरी जगहों पर ले जाना और भी मुश्किल हो जाता है। नाम आसिफ नज़ीर शेख है सर, मैं कुलन में रहता हूँ। आज हमारी ये डिमांड है कि जो हमारा यहाँ पे ये हॉस्पिटल बन रहा था 2010 में इसका जो शुरुआत हुई थी, लेकिन तब से लेके 2 साल इसका काम चला, फिर कुछ वजूहात की वजह से इसका काम रुका। लेकिन आज यहाँ पे अगर हम देखें इसका डस्टबिन का ये हॉस्पिटल किसी एंगल से यहाँ पे लगता ही नहीं है। इसका काम जो है यहाँ पे कुत्तों का काम है। अगर हम यहाँ पे कुत्तों की बात करें, कुत्ते यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे बच्चे खेलते, छोटे छोटे बच्चे, वो कुत्ते क्या हो सकते हैं, उन बच्चों को भी काट सकते हैं।
जिस हॉस्पिटल में उनका इलाज होना चाहिए था वहाँ पे उनकी जान भी जा सकती है। यहाँ पे आप कूड़ा करकट देख सकते हो, यहाँ पे डस्टबिन पूरा बना हुआ है इस हॉस्पिटल का। सर हम तो बचपन से देखते आ रहा हूँ, तब से मैं देख के आ रहा हूँ अंदर क्या हालात है। आप अंदर चलिए, आप एक बार इसके अंदर के हालात देखिए, अंदर इसका क्या हालात हुआ है सर यहाँ पे। इस बारे में जब हमने चीफ मेडिकल ऑफिसर गांधरबल से राबिता किया तो उन्होंने कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। जी, मेरा नाम शफात बशीर है, मैं यही मकामी बाशिंदा हूँ इस गांव का। तो आप ये देख रहे हैं हमारे पीछे जो ये बिल्डिंग है, 2009-10 में इसका काम स्टार्ट हुआ था। तो फौरी मतलब हंगामी बुनियाद पे काम स्टार्ट किया गया था, बहुत ही जल्द ये सारा ढांचा जो है वो खड़ा किया गया था। लेकिन उसके बाद पता नहीं फंड्स लैप्स हुए, ऐसा कुछ हो गया तो इसका काम रुक गया। और तब से लेके 10 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है। ये बिल्डिंग जो है अभी शैम्बल्स में आप देख रहे हैं पीछे। बिल्कुल ये बिल्डिंग मतलब हॉस्पिटल, यहाँ पे डिमांड थी लोगों की काफ़ी सालों से कि हॉस्पिटल होना चाहिए, क्योंकि टूरिस्ट इलाका है और काफ़ी सारी आबादी इस एक ही हॉस्पिटल पे डिपेंडेंट है, आप देख सकते हैं। मुंसिफ टीवी के लिए गांधरबल कश्मीर से राजा सैयद की रिपोर्ट। डांगरपुरा ज़ेनगीर में आयुष्मान भव के तहत मुफ्त तिब्बी कैंप का एहतमाम किया गया। इस मुफ्त तिब्बी कैंप में 1000 से ज़ायद लोगों ने शिरकत करके मुफ्त अद्वियात हासिल की। इस प्रोग्राम का एहतमाम पीडीसी चेयरपर्सन डॉक्टर फरीद खान और बीएमओ सोपो डॉक्टर जुल्फ़िकार अहमद सूफ़ी ने मुश्तरका तौर पर किया था। फ्री मेडिकल कैंप किया जा रहा है। यहाँ पे बहुत तादाद में लोग आए हैं और यहाँ देख सकते हैं, यहाँ जितनी लेडीज़ हैं, यहाँ हमारे मेडिकल स्टाफ पूरा मौजूद है, डॉक्टर्स मौजूद हैं यहाँ पर और सारे पेशेंट्स को देख रहे हैं। ये फ्री दवाइयाँ दी जा रही हैं यहाँ पर और करीब अभी तक मुझे लगता है कि 1000 से ऊपर आंकड़ा पास किया है और अभी भी लोग आ ही रहे हैं और काफ़ी अभी 3 बजे तक चलेगा। मुझे लगता है ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा है और यहाँ की आवाम को जो हेल्थ से रिलेटेड फ्री दवाइयाँ दी जा रही हैं तो उनको बहुत कुछ राहत मिली है और यहाँ की आवाम बहुत खुश है। जी हाँ, आगे भी और प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज किए हैं और भी अभी 2 अक्टूबर तक आप लोगों ने और फ्री मेडिकल कैंप किए जो आगे होने वाले हैं और जहाँ जहाँ हो सकता है वहाँ हेल्थ फैसिलिटीज़ दी जा रही है, लोगों को चेकअप की जा रहे हैं, टेस्टिंग की जा रही है। आयुष्मान भारत के तहत हमने गोल्डन कार्ड दिए हैं, आज डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और भी आगे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पाप हरण नाग ट्रस्ट की जानिब से कश्मीरी पंडितों ने सालिया अनंतनाग में अनंत चतुर्दशी का त्यौहार बड़े ही जोश व खरोश से मनाया। इस मौके पर कश्मीरी पंडितों ने त्यौहार में शिरकत की और खुशी का इजहार किया। पंडितों के साथ साथ मुसलमानों ने भी इस त्यौहार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पाप हरण नाग ट्रस्ट की जानिब से कश्मीरी पंडितों की वादी से हिजरत के बाद मुसलसल तीसरी बार इस तरह का प्रोग्राम पुराने तर्ज पर अनंत चतुर्दशी के मौके पर मुनक़िद हुआ। मजहबी एतबार से ये जगह काफ़ी तारीख़ी अहमियत की हामिल है, जिसका ज़िक्र हिंदू पुराणों में भी मिलता है। अगरचे मकामी आबादी ने हमेशा से पाप हरण नाग ट्रस्ट जैसी तारीख़ी और अहम जगह के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की हर मुमकिन कोशिश की है, लेकिन इंतज़ामिया से इस जगह की तक़द्दुस व अहमियत को बहाल करने का भी मुतालबा किया जा रहा है, क्योंकि इन मकामात से न सिर्फ मजहबी अक़ीदा जुड़ा है बल्कि इसे कश्मीर की मीरास भी तसव्वुर किया जाता है। में बहुत मेल मिलाप है, ये ऋषियों मुनियों की जगह है। यहाँ पर जो त्रासदी हुई थी 90 में वो सब 5-10 साल चला, उसके बाद फिर माहौल अब अच्छा होने लगा है। ये अच्छा इसलिए होने लगा है कि कश्मीरी मुसलमान इसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। कश्मीरी मुसलमान चाहते हैं कि हिंदू लोग यहाँ आए, वो अपने जो उनके त्यौहार है उनको मनाए, जो उनकी जगह है, पवित्र जगह जो है वो उनमें आए, मेल मिलाप बढ़ाए। आज इससे जो हम आते हैं या जो हमारे दूसरे भाई हिंदू लोग आते हैं, इससे इंटरेक्शन होता है, आपस में मेल मिलाप बढ़ता है। तो यही हम दुनिया को मैसेज देना चाहते, खासकर भारत के लोगों को मैसेज देना चाहते। यहाँ अभी भी भाईचारा है, यहाँ अभी भी वही रिवायात है। ये चंद अंसर जो उस वक्त आए थे जिन्होंने यहाँ खराबी की थी, वो ज़माना अब चला गया। मैं यहाँ पर हिंदू परंपरा और धार्मिक हर्षोल्लास के साथ जो है वो यहाँ पर मनाया गया है। कल शाम से यहाँ पर हवन का आरंभ जो है वो किया गया है और आज दोपहर के समय यहाँ पर पूर्ण आहुति होगी और उसके बाद जो प्रसाद जो है वो सर्व किया गया डिवोटीज में, जो यहाँ पर दूर दूर जगह से आए थे और जम्मू से भी आए थे। इसके साथ साथ आज जो यहाँ की जो परंपरा है
जिसको हम कश्मीरी में दिवई बोलते हैं। इसका मतलब है कि जो ये मेन पापरनाथ स्प्रिंग है, इस पर आज शाम को दीप जलाए जाएंगे चारों ओर इस परिसर में, और ये जो स्प्रिंग है इसके ऊपर, और इसके साथ साथ जो यहाँ पर भजन कीर्तन जो है, जो कल शाम से आज शाम तक वो होगा। कश्मीर जनूबी कश्मीर के पुलवामा ज़िले में पेड़ों से हाई डेंसिटी सेब उतारने का सिलसिला जारी है। किसान इमसाल काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। जदीद तरीक़े काश्त, फलों के बेहतर म्यार और अपने मुआफ़िक़ मौसमी हालात और ज़रख़ेज़ मिट्टी की वजह से ज़िले पुलवामा ने सेब के बागात के मरकज़ के तौर पर पहचान बनाई है। ज़िले का मुनफरिद जोग्राफिया और मौसम के नमूने सेब की काश्त के लिए बेहतरीन माहौल यहाँ पैदा करते हैं। पुलवामा से निकलने वाली हाई डेंसिटी सेबों की पैदावार को उसके गैर मामूली जायके और मेयार के लिए बहुत अहमियत दी जाती है, जिसकी वजह से इसे मकामी और बैनुल-अक़वामी दोनों बाज़ारों में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। सेब की फलती फूलती फसल पुलवामा के किसानों के लिए खुशहाली लाती है और इससे खित्ते को मुआशी तौर पर फ़रोग़ मिलता है। इसके अलावा ये इलाके की मजमूई ज़राई तरक्की में नुमायाँ तौर पर अपना हिस्सा अदा करती है, जिससे सेब की काश्तकारी में मसरूफ़ मुतादिद ख़ानदानों की रोज़ी रोटी में मदद मिलती है। पुलवामा में हाई डेंसिटी सेबों की काश्त की कामयाबी उसके किसानों की इख्तराई तकनीक और लगन को ज़ाहिर करती है। ये कामयाबी न सिर्फ मकामी मईशत को फ़ायदा पहुँचाती है, बल्कि आला मेयार के सेबों के एक अहम ज़रिए के तौर पर ज़िले की साख को भी मुस्तहकम करती है। ज़राई तरीक़ों में मुसलसल तरक्की के ज़रिए पुलवामा सेब की सनत में इलाक़ाई और आलमी सतह पर एक मुमताज़ खिलाड़ी के तौर पर अपना इम्तियाज़ बरकरार रखने के लिए तैयार है। हालिया बरसों में कश्मीर के इलाके में रिवायती सेब के बागात से ज़्यादा हाई डेंसिटी के बागात में नुमायाँ तब्दीली आई है। ये तब्दीली बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ अवामिल की वजह से हुई है, जैसे कि ज़मीन की किल्लत में इजाफ़ा, मार्केट की तलब और तकनीकी तरक्की। सबसे पहले ज़मीन की कमी रिवायती सेब के बागात को ज़्यादा कसाफत वाले बागात में तब्दील करने का एक बड़ा अंसर है। आबादी में इजाफे और शहरकारी की वजह से खित्ते कश्मीर में ज़मीन की मांग में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। हाई डेंसिटी बागात बेहतर इंतज़ामी तकनीकों के ज़रिए आला फल पैदा करने की सलाहियत रखते हैं, बशमूल दुरुस्त कटाई, तेज़ आबपाशी और कीड़ों पर काबू पाना। इन तरीक़ों के नतीजे में फल का साइज़, रंग और जायका बेहतर होता है, जो मार्केट की ज़रूरियात को पूरा करता है। किसानों का कहना है कि इमसाल उनकी फसल की उन्हें माकूल कीमत मिल रही है, जबकि गुज़िश्ता 2 बरसों के दौरान उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था। उन्होंने गवर्नर इंतज़ामिया से अपील की कि वो कौमी शाहराह को खुला रखने के लिए इक़दामात उठाएं, ताकि मेवा गाड़ियों को आने जाने में मुश्किलात पेश न आए और उन्हें तरजीही बुनियादों पर आगे बढ़ने दिया जाए। इस साल जो हमारी फसल की उपज हुई है, ये बहुत अच्छी हुई है और इस साल इसके रेट्स भी बहुत अच्छे हैं। हम बहुत खुश हैं। पिछले कई सालों से हमने देखा है, जो हमारे सेब थे बढ़िया क्वालिटी के होते थे, मगर वो हम गाजर मूलियों के भाव बेचते थे, उससे हमारा काफ़ी नुकसान हुआ। आर्थिकता में हमारी काफ़ी उससे कमी हुई, क्योंकि हमने ये पैसा खुद से नहीं लिया होता है, हमने बैंकों से लोन लिया होता है। और इंशाल्लाह अगर यही स्टार्टिंग एंड तक रही तो ये साल हमारे लिए खुशियों का बाइस बन सकता है। इस मौके पर महकमे बागबानी के ज़िला अफसर जावेद अहमद ने बात करते हुए कहा कि रवां साल सेब की पैदावार काफ़ी अच्छी हुई है, जबकि क्वालिटी भी बेहतरीन है और सीज़न शुरू होने के साथ ही मेवाजात में काफ़ी मांग देखने को मिली है, जो कि किसानों के लिए खुश आइन बात है। सेब के रिवायती बागात की तब्दीली में मार्केट की तलब एक अहम किरदार अदा करती है। जैसे जैसे सार्फिन सेहत के हवाले से ज़्यादा बेदार होते हैं, वो मेयारी ग़िज़ा की तरफ माइल होते हैं। इसके अलावा अच्छा मीठा जायका भी आला मेयार के सेब की मांग में इजाफ़ा करता है। जावेद अहमद ने कहा कि उम्मीद है कि इमसाल मार्केट ठीक रहेगा और किसानों को काफ़ी फ़ायदा होगा। मुनसिफ टीवी के लिए पुलवामा कश्मीर से सैयद आदिल मुश्ताक की रिपोर्ट। जो हम देख रहे हैं, हमारे जो फार्मर्स है इसके साथ जो इन्वॉल्वड है, दे आर वेरी हैप्पी। हम भी खुश हैं। एक अच्छा क्रॉप है, गुड क्वालिटी और एक अच्छा फ्रूट सेट भी है। पीपल आर हैप्पी।
तो अभी देखने में आ रहा है कि रेट भी ठीक ठाक है अभी हार्वेस्टिंग में। मोस्ट ऑफ द पीपल को अभी जो बायर है वो इवन फार्म गेट पे ही आ रहा है, तो पीपल जो इसके साथ एसोसिएटेड है, जो फार्मर्स एसोसिएटेड, दे आर वेरी वेरी हैप्पी। तो वी एक्सपेक्ट सैम कि ऐसे ही ये चलता रहेगा। वी आर एक्सपेक्टिंग अ गुड रेवेन्यू ऑफ हाई डायनेस्टी जो फार्मर्स का है। और आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में धमाका, 8 मजदूर जख्मी, दहशतगर्दी के जाविये की तस्दीक नहीं। एसडीआरएफ ने दिया मुस्तैदी और बहादुरी का सबूत, तेज हवाओं के दरमियान मानसबल झील में फंसे 6 अफराद को बचाया। और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर से की दरख्वास्त, सऊदी अरब में सड़क हादसे में जाँ बहक हुए श्रीनगर के नौजवान की मैयत वापस लाने की गुजारिश। जेकेएल डायरी में आज बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, आदाब।